Hello guys, my name is Jayant Nahata and I have secured All India rank 56 in the present UPSC CSE 2020 exam. So this is my video for Unacademy to help you in the preparation of UPSC. This video is titled Do's and Don'ts during UPSC preparation. This is a brief background about me. I have done BTech and MTech in Biochemical Engineering and Biotechnology from IIT Delhi. Then I had graduated and given my first attempt in 2018 along with graduation. Then in the second attempt, I first managed to secure a rank and a place in the list of UPSC, a rank of 298 which secured me Indian Civil Account Service. And then in this present year, fortunately I secured a rank of AIR 56. My optional is Political Science and International Relations, and my hobbies are reading non-fiction books, dancing, doing Vipassana meditation, etc. So my free live classes will be available on Unacademy, and if you use the code JN56, these will be free of access to you. These are other good educators on the Unacademy platform. So let's start with the do's. The first do is have that fire in the belly. What do you mean by this? Have that fire in the belly means that you should have an urge to clear the exam. Every minute, every moment that you live till you clear the exam, your preparation journey, you should have that purposeful aim at the final list and the final place in the coveted services of IAS, IPS, etc. So have that fire. What it means is, जैसे हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कुछ समझ नहीं आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इफ़ यू हैव दैट फायर इन द बेली, ऑलवेज लर्न टू फाइंड वेज. अपना डीमोटिवेशन दूर करने के लिए यू फाइंड वेज, अपना नोट्स नहीं मिलने के लिए यू फाइंड वेज, वट एवर इट टेक्स. This means that whatever it takes, you will clear the exam and you will do anything that the exam requires. Secondly, once you have that fire lit in your belly, keep the syllabus and PYQs as the basic structure of the preparation. What does this mean? It means that other things like your mocks, test series, your friends, mentors, etc., these are just to supplement this basic structure, because these are only the two things that UPSC provides us, the syllabus and the PYQs. Once you know the syllabus in and out, what the UPSC demands, you know it fully. And the PYQs are the only ways you know how the UPSC frames questions regarding to the different syllabus objects and subjects. So my strategy was that I will find a book or something like that which tells me which are the questions, the PYQ questions that have been asked on different syllabus points in the UPSC exams over the years, especially after 2012 and 13. So this one is available on different websites, you can check it out. Once you have this in place, then your preparation becomes very simple, because you know whenever in doubt, this is the talisman for you, that whenever in doubt, refer the syllabus and the PYQs. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको डाउट हो रहा है ये न्यूज़ सही है कि नहीं, या ये न्यूज़ रेलिवेंट है कि नहीं मेरे एग्जाम के लिए, go to the syllabus. You will know that maybe the political news or things like outer space, or things which are very beyond your general studies that is being asked in prelims and mains, this will not be asked in UPSC, and therefore you can chuck that news. Similarly, in PYQs, it will tell you in what depth you have to cover the syllabus points. For example, UPSC says that the understanding of space, IT, biotechnology and nanotechnology is a demand in the GS paper 3. But then PYQs will tell you that UPSC will ask only a certain type of questions. It will only ask a defined depth of questions. You will not be expected to answer very complex or very theoretical, very complex and very scientific concepts, but only the concepts which are very relevant to your career as a bureaucrat and as a member of the civil services. So next is grow and don't stagnate in the process. इसका मतलब ये है कि जब भी जर्नी हो रही थी, मेरा क्या था कि I was a prolific reader. I want to read and know new stuff, even apart from UPSC. In fact, this was one of the main motivations जिससे मैंने UPSC चालू किया था,
कि मुझे स्ट्रक्चर्ड बहुत अलग अलग चीज़ें जानने में, अलग पर्सपेक्टिव्स होने में बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो ये चीज़ बंद नहीं करनी है। लाइक यूपीएससी चालू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है यू कैन नॉट फॉलो योर हॉबीज़, यू डोंट ग्रो योर सेल्फ एज अ पर्सन, या अपनी पर्सनैलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको, ऐसा नहीं है। यू शुड ग्रो ऑल्सो इन द सेंस दैट अगर आप ग्रो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम एज वेल। दूसरा, जैसे एक लंबी जर्नी कभी कभार हो जाती है कि एक साल में अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट आता है, इफ़ यू डोंट ग्रो, ये जो स्टैग्नेशन वाला फीलिंग है ना, बहुत सारे लोगों को इट पुल्स देम डाउन कि 4 years ऑफ योर ब्राइट यूथ एंड योर पीक ऑफ योर लाइफ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया एंड आपने 3-4 साल में यूपीएससी क्लियर नहीं करा या कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस इन द एग्जाम ऑल्सो गेट्स हिंडर्ड। तो मेरा तो ये था कि आई रेड सो मेनी बुक्स, आई हंग आउट विथ फ्रेंड्स, ब्रेक्स ले लेता था, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स लेनी पड़ती है। तो टेक ऑल ऑफ दिस बट डोंट स्टैग्नेट योर सेल्फ एंड डोंट कूप योर सेल्फ इन अ सिंगल रूम। नेक्स्ट इज टेकिंग रेगुलर फीडबैक। ये एग्जाम इतना लंबा है और आप इतनी सारी चीज़ें कवर करनी होती है आपको, फ्रॉम हिस्ट्री टू साइंस टू या इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके एथिक्स एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। इन सब में एक इंसान तो मास्टर नहीं हो सकता, स्पेशली आप, क्योंकि आपने अभी 3-4 साल पहले चालू किया है। तो टेक रेगुलर फीडबैक टू नो वेदर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो सही है। बिकॉज अगर आप माउंटेन सही डायरेक्शन में ही खोद रहे हो तभी आपको गोल्ड माइन स्ट्राइक होगी। अगर आप रैंडम डायरेक्शन में बहुत हार्डवर्क करके खोदे जा रहे हो, आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है एंड आपको लेट रियलाइज होगा। सेल्फ अगर रियलाइज आपको करना है तो थोड़ा लेट रियलाइज होगा। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन तो ज़रूरी है, बट थोड़ा आउटर स्क्रूटनी, जैसे कोई मॉक्स दे रहे हो आप, या अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना आपको, तो अगर आपने कोई पेपर लिखा है, किसी सीनियर को दिखा दिया, या किसी सीरियस ग्रुप में आप फ्रेंड का ग्रुप बना लिया आपने, उसके पार्ट हो आप, तो अगर आप ये सब करोगे तो आपको फीडबैक मिलता रहेगा कि क्या आप वो पर्टिकुलर आंसर, क्या आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या आपका जो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो यूपीएससी के लिए, अपनी प्रेपरेशन के लिए, क्या आप वो सही कर रहे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड क्या आप इंप्रूव कर रहे हो टाइम के साथ। तो टेक रेगुलर फीडबैक। मैंने तो हमेशा फीडबैक पे इंफोसिस दिया, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारे टेस्ट दिए। बहुत कोचिंग मैंने प्रीलिम्स के लिए आज सच नहीं ज्वाइन करी, जब भी जो टेस्ट सीरीज होती थी इनसाइट्स की, या कई पहले कभी ज्वाइन करी होगी, बट उसके बाद मेरा था कि मैं पेपर्स मार्केट से ले आऊँगा एंड उसको सॉल्व करूँगा एंड उस पर अपना जो भी उसका लास्ट में इसका सोल्यूशन दिया है वो देख लूँगा। किसी ने क्वेश्चन जो मैंने गलत किए हैं वो अगर किसी ने सही करे हैं तो मैं जाके उनसे बात कर लूँगा। बट ऐसा नहीं होता था कि मैं बस दिए जा रहा हूँ चीज़ और ना सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ना किसी को दिखा रहा हूँ, बस मुझे लग रहा है हाँ मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ें छोड़ दूँ। नहीं, फीडबैक इज़ वेरी एसेंशियल। अगेन, लर्न टू टेक ब्रेक्स। इस जर्नी में आप थोड़े स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स ले सकते हैं एंड लेना भी चाहिए, दिन में भी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, जैसे मंथ्स में, या जैसे एक स्टेज के बाद, प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद, certain amount of time, certain days, certain window of chilling, that I can say you can do that, and it is recommended also. It's not just that you can, it's that you should, but then everything should be in limit and everything should be designed in such a manner that वो आपका preparation and आपका जो main time है पढ़ाई का उस पर hinder नहीं कर रहा, but apart from that you have enough time to relax and cool down. जैसे मैं क्या करता था, इतनी बार मेंस के बाद इतना अच्छा टाइम होता है हमारे पास कि इंटरव्यू थोड़ा लेट रहता है, मेंस तक अपन बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स का एकदम इंटेंसिव टाइम होता है और उसके बाद आप 1-2 दिन 3 दिन ही ब्रेक ले पाते हो और उसके बाद आपको मेंस 3.5-4 महीने पढ़ना होता है। तो मैं हमेशा ब्रेक्स, अपना जो लंबे ब्रेक्स होते थे मेंस के बाद, थोड़ा टाइम शेड्यूल करता था। आई हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी प्लेसेस, मुंबई इतनी बार चली गया, अभी अगस्त के बाद इंटरव्यू में आई वेंट टू उदयपुर, देन आई वेंट टू बाली इंडोनेशिया 2019 के बाद व्हेन कोरोना वायरस वाज नॉट देयर। तो whatever is it, be it a travel destination, be it meeting friends, be it attending something, but do that in a strategic manner. Don't take I'm not suggesting you that कि आप पढ़ रहे हो उसमें मतलब आपको पढ़ाई में दिल लग रहा है एंड ब्रेक लेना है, मैंने बोल दिया तो आपको ब्रेक लेना है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई जब करनी होती है एकदम हार्डवर्क के साथ, एकदम डेडिकेशन, फोकस के साथ, सब कुछ साइड रख के, सारे डिस्ट्रैक्शन साइड रख के आपको एकदम पढ़ना है। प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, प्रीलिम्स से पहले एकदम पढ़ना है आपको। बट देन कभी कभार जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सपोज हम एक हफ्ता पढ़ रहे हैं, संडे आ गया है एंड आपका पढ़ाई वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, देन यू शुड टेक अ ब्रेक।
2 घंटा ले लिया, 3 घंटा ले लिया, एक मूवी देख ली, कभी फ्रेंड से कोई अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके जो आपको मोटिवेट करते हैं, you should do that. I'll recommend you to take breaks. Now coming back to the second part, that is don'ts in the preparation. First, don't compromise on physical and the mental health. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आप एक सोफे पे बैठ जाओगे, एक टेबल पे बैठ जाओगे एंड पढ़ते रहोगे, और उसके अलावा जब आपको थोड़ा टाइम मिलेगा या तो आप सो जाओगे या तो लंच डिनर एक्सेट्रा करोगे, बट आप you get cooped up in a particular environment, जैसे लाइब्रेरी से हॉस्टल, हॉस्टल से लाइब्रेरी, या सम रूम इन राजेंद्र नगर, एंड यू बिकम लिथार्जिक हो जाता है, एंड वो लिथार्जी दैट इफेक्ट्स योर मूड, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल बॉडी शेप, एंड देन योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, एंड देन फाइनली योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो I was like kind of skinny, and 3-4 years, 5 years back I was kind of skinny. But then November 2018 जब मेरा first मेंस हो गया था, उसके बाद I decided that I want to focus on my physical health. I'm a regular goer to the gym, and कभी कभार वो ब्रेक्स हो जाते थे, कभी कोरोना वायरस आ गया या जिम्स बंद हो गए या कुछ हो गया. But then I would buy some equipments, मतलब जो एकदम basic equipments होते हैं घर पे ले आया, so that I don't lag down on my physical health. और उससे क्या होता है, इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर. जब आप फिजिकल हेल्थ सही रहती है, इट्स सेड दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, एंड इट्स डेफिनेटली ट्रू. आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी सीनियर्स ऑल्सो कि फिजिकल हेल्थ पे अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकालते हो, 25, 30, 35, 40 मिनट्स, जितना भी आपका अवेलेबल है आपके टाइम शेड्यूल में, दैट हेल्प्स यू इन योर प्रेपरेशन. दूसरा है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप डीमोटिवेशन को कैसे हैंडल करते हो, आप स्टैग्नेशन, या आपको एग्जाम में आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो और नहीं आपको मिल रहा है, तो how do you handle your mental state of mind? That is an equally crucial aspect of your preparation. And I think recently it's a encouraging trend. बहुत सारे लोग जो टॉपर्स हैं वगैरह, सेलिब्रिटीज़ हैं, सब मेंटल हेल्थ पे बहुत बात कर रहे हैं, स्पेशली कोरोना वायरस के पीरियड के बाद. एवरीबडी इज़ फीलिंग अ टॉल ऑन देयर मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, या थोड़ा आपका मूड ठीक नहीं रह रहा, आप कोई मॉक में अच्छे नंबर नहीं आए, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, तो हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट. और उसको पॉजिटिव माइंडसेट को कल्टिवेट करने के लिए यू कैन हैव पॉजिटिव रीअफर्मेशंस, यू कैन हैव सम कोट्स ऑन योर डेस्क बाय सम टॉपर हु हैज स्ट्रगल्ड एंड फाइनली मेड इट टू द लिस्ट. You can do meditation and yoga or your exercises, everything and anything, any small investment in your mental and physical health, that will pay huge dividends, not just for this exam but in your future life as well. Secondly, don't stop but rest when you're tired. What it means is, जैसे कई बार ऐसे एग्जाम के फेज में आपको लगेगा कि हो गया, बस हो गया, और नहीं करना मुझे, एंड लेट्स एंड दिस, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स. बट आई वुड से दैट फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाना सीखो. मतलब अगर आप टायर्ड हो तो टेक अ स्मॉल ब्रेक, फ्रेशन योर सेल्फ अप, गो टू सम ट्रैक 2-3 days, 4 days, but then learn to get back on that same journey. बिकॉज आपने जब डिसाइड किया था आपको IAS बनना है, तब आपने ये नहीं सोचा होगा ना कि बिना इसको अकम्प्लिश करे मैं छोड़ दूंगा. बट देन जो प्रोसेस है उससे आप हार मत मानो. ऑलवेज हैव दैट एम इन योर माइंड एंड डोंट स्टॉप. लाइक यस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई डिसीजन ही ना लो या आप इनडिसाइसिव बंदा बन जाओ और आप इस लूप में बैठे ही रहो. येस, यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजंस, बट देन वो छोटे छोटे हर्डल्स जो होते हैं कि मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, 2-3 मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आए, या आपके दोस्तों ने बहुत जल्दी क्लियर कर लिया, आपने बहुत किसी टॉपर को देख लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, आपका थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके फुल स्टॉप ही लगा लो जर्नी में. बाकी अगर आप एकदम थॉट थ्रू करके कुछ भी सोचो, दैट्स योर लाइफ, यू आर वेरी फ्री टू टेक डिसीजन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट स्टॉप बट लर्न टू टेक रेस्ट. सेम चीज़, डोंट गेट डीमोटिवेटेड इन द प्रोसेस. बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ भी इतनी बार हुआ है, मेरे आसपास जो लोग IAS बन गए और जो मेरे साथ पहले प्रिपेयर कर रहे थे इवन बिफोर गेटिंग इनटू द सर्विस, मतलब हमें डीमोटिवेशन इज नेचुरल, बट देन आफ्टर क्लियरिंग द UPSC एग्जाम एंड गेटिंग इनटू IAS, मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड से कि ये डीमोटिवेशन है ना, मतलब हल्के हल्के में लो इसको थोड़ा ना. डीमोटिवेशन मतलब जैसे एक आधा मॉक आपका ख़राब हो गया, मतलब आपके 40 नंबर आ गए सपोज प्रीलिम्स के एक टेस्ट में, यार वो
टेस्ट डिफिकल्ट होगा, ठीक है, और वो सेम टेस्ट आएगा भी नहीं, तो इतनी जल्दी डिमोटिवेट नहीं होना है अपन को, है ना। एक लार्जर पिक्चर लेके रखनी है एंड फिर उसके लिए मेहनत करनी है। छोटी मोटी चीज़ें आती रहेगी, मतलब पूरे मतलब यूपीएससी से पहले भी आपने फेस करी होंगी और आपने उसको अकम्प्लिश किया होगा, और यूपीएससी के बाद भी आती रहेंगी। तो ये डिमोटिवेट वाली चीज़ जो है वो आपको फ्यूल की तरह रखनी है कि आप इसको कोई सेटबैक अगर आपका जर्नी में आ रहा है, कोई मॉक में गंदे नंबर आ रहे हैं, या कोई फ्रेंड आपसे मच बेटर परफॉर्म कर रहा है सेम एनवायरनमेंट में, तो उस चीज़ को एज अ फ्यूल लो, लाइक हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट इट कि इस चीज़ को मैं डीमोटिवेट नहीं करने दूंगा, अपने आप को पुल डाउन नहीं करने दूंगा, बट इस चीज़ को मैं फ्यूल लूंगा कि और इंप्रूव करना है मुझे, और अच्छा करना है, कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, या और हार्डवर्क इधर पुट इन करना है, बट डीमोटिवेट होकर अपनी प्रेपरेशन को हैम्पर नहीं करना है। एंड डोंट फॉरगेट द वाई। इसका मतलब है जब भी आप एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, थिंक बैक कि वाई क्या है आपका, वाई क्या था आपका जब आपने स्टार्ट किया था 1 साल पहले, 2 साल पहले। वॉट वॉज दैट थिंग दैट मोटिवेटेड यू टू कम इन टू IAS। अब वो कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए जैसे मैं 4th ईयर ऑफ माई कॉलेज का जर्नी, 4th ईयर ऑफ कॉलेज जब मैं IIT में था, आई वॉज इलेक्टेड टू द टॉप पोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल। वहाँ पे यू हैव दैट वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ लाइक एन IAS ऑफिसर। तुम वहाँ पे you do facilitation, you impact a lot of different things। एक नीश एरिया नहीं है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, ये सब नहीं है। तो वो थोड़ा मुझे IAS का पीरियड लगता था, एंड वो वाला चीज़ मैं हमेशा रिकॉल करता था। वो वाला पीरियड वॉज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। आई वॉज सो हैप्पी एवरी डे वेन एवर वी मेड इवन छोटा सा प्रोग्रेस, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो जब भी मैं एग्जाम में थोड़ा 1 साल हो गया एग्जाम में, या कभी कोई जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट 2018 में मेरा मेंस नहीं हुआ, 2019 में व्हेन आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 298, आई वॉज नॉट हैप्पी। आई वॉज लाइक कि यार वापस एग्जाम देना पड़ेगा। बट मैं कभी नहीं भूला कि मतलब हाँ कभी कभार चलता है, बट ऑलवेज हैव दैट इन माइंड कि क्यों करना था मुझे एग्जाम। तो मेरा था कि मैं हमेशा उस पीरियड में जाता था, सोचता था मुझे ये वाली चीज़ लाइफ भर करनी है और ये IAS ही देगा मुझे। तो चाहे 298 रैंक आए, चाहे मेंस ना क्लियर हो, वाई अगर आपका सॉर्टेड है और बहुत स्ट्रांग है, तो इट विल push you to achieve and to constantly improve. So this was it, and I take your leave. Thank you. I hope that you took something valuable out of this video, and I'll keep making more videos after this. Thank you.